Hello friends, my name is Ritesh Agrawal and once again we are back with the Hindu analysis for today. आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज की, ऑल द रेलेवेंट स्टफ फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर फॉर क्लैट 2022 फ्रॉम सोमनाथ टेम्पल टू चाइना टू मलेशिया टू द वर्ल्ड ऑफ फार्मा व्हाट नॉट. हम इन सब के बारे में बात करेंगे. लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज एजेंडा फर्स्ट. ओके. As you know, in this section, we look at all the important stories which we have shortlisted from today's The Hindu edition for CLAT 2022. ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में, उन सबको हमने शॉर्टलिस्ट किया है. वी विल बी डिस्कसिंग देम ऑल वन बाय वन. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन. सो रीन ऑफ टेरर इज नेवर परमानेंट. लेट्स जस्ट लुक एट द एंटायर लिस्ट कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो रीन ऑफ टेरर इज नेवर परमानेंट, ऐसा मोदी साहब ने कहा है. हम इसके बारे में और बात करेंगे. ज़ाइकोव डी became the first vaccine to get a nod, to be administered to kids above 12. Then Supreme Court said quota benefit can't be availed simultaneously in two states. Johnson and Johnson has asked for approval for COVID vaccine trials for adolescents. And Malaysia got a new prime minister. Then editorials, couple of articles. Beijing passes a couple of articles related to China. Beijing passes online privacy law. China passes 3-child policy. And then we'll look at the editorials towards the end, where two interesting articles are there: reboot to reset and faith and marriage. So this is the agenda for today. A lot of interesting stuff. Let's get started with the first update for today on the front page. Reign of terror is never permanent. Okay, so you can see this article on the front page. Reign of terror is never permanent, says Prime Minister, basically hinting at what's happening in Taliban, probably. Okay, so what Prime Minister was doing, he was inaugurating a few projects in Somnath Temple. Have you heard of Somnath Temple? Can you tell me where is Somnath Temple? It's in Gujarat. Okay, so Prime Minister inaugurated a few projects, okay, in Somnath Temple, basically renovation of Somnath Temple. So you can see these projects listed here. He inaugurated Somnath Promenade, Somnath Exhibition Center, and the reconstructed temple precinct of Old Somnath. Okay, so he was speaking in this event that the reign of terror is never permanent, or for a moment you may feel that terror is dominating, but it cannot win over the humanity, probably hinting at the current happenings in Afghanistan. Okay, so what can come out of this? You can be asked questions about Somnath Temple. Okay, so some interesting facts here. Prime Minister Narendra Modi is also the chairman of Somnath Temple Trusts. Okay, and he has also inaugurated, besides the projects which I have mentioned, which have been completed by now, also he has laid the foundation stone for a Parvati temple. Okay, so Somnath Temple is a Shiv temple. Okay, it is one of the foremost, in fact it is the foremost temple amongst the 12 Jyotirlingas. Okay, it is located in Gujarat. It has been invaded and destroyed multiple times by various foreign invaders and rulers, and it has been reconstructed every time. Okay, so you would have heard of the famous Mahmud of Ghazni raid on Somnath Temple. Aurangzeb destroyed it once. Okay, but after we get independence, because of the efforts of various eminent personalities like Sardar Vallabhbhai Patel, KM Munshi, PM Narendra Modi. Okay, now we have renovated the Somnath Temple. So the present temple is in the Chalukya style of temple architecture. Okay, so because whenever we talk about temples, the architecture becomes important. So Chalukya style of architecture. It's also called Kailash Mahameru Prasad style. Okay, which is a reflection of Sompura Sallets, which are very famous, considered to be a very famous tribe of Gujarat's Masons. Okay, so questions can be asked about Somnath Temple, its location, its geography, its history. Okay, how it has been invaded and how it has been reconstructed again and again. I'll tell you one very interesting point about Somnath Temple. So Somnath Temple is basically located on a longitude
so that from Somnath temple to Antarctica, nothing comes in between. Okay, so it's only sea till the south of the planet. Okay, and it's mentioned over there on a pillar also. So it's a very interesting thing which I read about Somnath temple when I was researching about it. Okay, so this is the first update for today. Then we'll talk about Zycov D. Zycov D is a vaccine by a company called Zydus Cadila, which is based in Ahmedabad, and it has become the first vaccine to get approval. It is a COVID vaccine, first vaccine which can be administered to kids above the age of 12. ठीक है, तो 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको ये वैक्सीन दी जा सकती है. अभी तक जो वैक्सीन थी वो 18+ पे अवेलेबल थी, राइट. तो 12 से 18 के ग्रुप में पहली बार कोई वैक्सीन है जिसको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला है, और इस वैक्सीन का नाम है जाइकॉव डी. ये वैक्सीन लेकर आई है जाइडस कैडिला, विच इज़ अ कंपनी बेस्ड इन अहमदाबाद. एंड हु इज़ द चीफ ऑफ जाइडस कैडिला? द CEO's नेम इज़ पंकज पटेल. ओके, पंकज पटेल. ठीक है, तो DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, हैज़ गिवन द अप्रूवल. If I ask you who is the drug controller general of India, can you tell me the name of drug controller general of India? His name is VG Somani. What is the name? VG Somani. One very interesting thing about this vaccine is that it is the only DNA based vaccine. Okay, and it doesn't need a needle for its administration. ठीक है, तो बिना नीडल के, बिना सुई के वैक्सीन दी जा सकती है ना. बच्चों को और क्या चाहिए, राइट. तो जाइडस कैडिला, चेयरमैन पंकज पटेल, हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इज डॉक्टर VG सोमानी. ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं. जब इस वैक्सीन के बारे में बात की जाएगी तो इस वैक्सीन के बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है? ट्रायल एफिकेसी कितनी थी? मैंने आपको बताया 66% है. कौन सी कंपनी ने बनाया है? जाइडस कैडिला ने बनाया है. वैक्सीन का नाम क्या है? जाइकॉव डी है. किसने अप्रूवल दिया है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दिया है. उनका नाम क्या है? VG सोमानी है. जाइडस कैडिला के चीफ का नाम क्या है? पंकज पटेल है. जाइडस कैडिला के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? अहमदाबाद में. ठीक है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इसके अराउंड, ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, कौन से एज ग्रुप को कैटर करती है? 12 एंड अबव. ठीक है, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम अप विद द डिसीजन वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट you cannot avail the reservation benefit or the quota benefit simultaneously in 2 states. Okay, there is this case where there is a person who was residing in Jharkhand and had a address proof, permanent address proof of Patna in Bihar, and this guy claimed reservation benefit in State Civil Service Commission of Jharkhand. ठीक है, तो the government denied it that you are a citizen of Patna. Okay, you have a resident, you have a permanent address proof of Patna, so we cannot give you reservation. Or Supreme Court upheld the decision, okay, where the government said that you cannot claim reservation benefit simultaneously in Bihar and Jharkhand. You can claim it in only Bihar, where you have a permanent address proof. Okay, so this is the decision given by Supreme Court. You can see here that a person belonging to a reserved category is entitled to claim the benefit in either of the successor states of Bihar or Jharkhand. So you can either claim it in Bihar or you can claim it in Jharkhand, but you cannot claim it in both simultaneously. Okay, next update. So Johnson & Johnson has requested approval for COVID vaccine trial on adolescents. तो अभी हमने क्या बात की थी कि Zycov D has come up with a vaccine. Now Johnson & Johnson has also requested for clinical trial. ठीक है, अभी वैक्सीन को clinical trial, in case of Zycov, the clinical trial has already been done. They have requested for clinical trial कि गवर्नमेंट हमें अप्रूवल दे कि we can conduct the clinical trials, and then once we find the findings satisfactory, we will launch the vaccine in the market. और ये भी adolescents के लिए है obviously. So 12 to 17 के एज ग्रुप के लिए ये वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स करना चाहते हैं. ये कहते हैं हमारी वैक्सीन तैयार है, वी वांट टू कंडक्ट द ट्रायल्स, एंड इफ द ट्रायल्स आर फाउंड सेटिस्फैक्टरी वी विल लॉन्च द वैक्सीन इन द मार्केट. तो जॉनसन एंड जॉनसन की 18+ की वैक्सीन को ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, ये आपको पता होगा. ऑलरेडी हम एडल्ट्स के लिए 5 वैक्सीन को एमरजेंसी यूज अप्रूवल गवर्नमेंट दे चुकी है. कौन सी 5 वैक्सीन हैं? कोविशील्ड, कोवैक्सिन, मॉडर्ना, देन आपकी जॉनसन एंड जॉनसन, एंड देयर इज one more by
स्पुतनिक 5, ओके, दिस इज फ्रॉम रशिया इफ यू रिमेंबर, ठीक है, रशियाज स्पुतनिक 5। तो ये 5 वैक्सीन को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया है, दिस इज फॉर 18+। और अब 18 से बिलो 18 के जो एज ब्रैकेट में वैक्सीन हैं उस केस में अप्रूवल देने की बात चल रही है जॉनसन एंड जॉनसन को, ठीक है। ऑलरेडी जाइकोव डी फ्रॉम जायडस कैडिला हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड, और ये अप्रूवल की रिक्वेस्ट जॉनसन एंड जॉनसन ने दी है। जॉनसन एंड जॉनसन इज एन अमेरिकन कंपनी, इट्स एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी जिसने अप्रूवल मांगा है। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। सो दिस इज समथिंग अबाउट मलेशिया। So the Malaysian king has made the former deputy prime minister as the new prime minister, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, आपके सामने पूछा जा सकता है हु इज द किंग ऑफ मलेशिया, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। सो द नेम ऑफ किंग ऑफ मलेशिया इज अल सुल्तान अब्दुल्ला एंड द नेम ऑफ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया इज इस्माइल साबरी याकूब। ओके, सो रिमेंबर दीज नेम्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। Okay, so one interesting thing about these is that no elections were held for prime minister. मलेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन किंग को अलाउ करता है that he can choose the or appoint the new prime minister. So the Malaysian king has appointed Ismail Sabri Yaakob as the new prime minister. Okay, now some of you might be thinking that, sir, we have heard of Malaysia, but can you tell us the exact location? Where is Malaysia? So we will cover it in the map section for today. Okay, so here you can see the map. Malaysia is here. So it's in Southeast Asia. Okay, it's in Southeast Asia. You can see the other Southeast Asian countries here: Thailand, Cambodia, Vietnam, Philippines, Brunei, Singapore, Indonesia. Okay, now you can see that Malaysia is being highlighted at 2 places, here and here. Basically South China Sea divides Malaysia into 2 parts. There is Peninsular Malaysia and there is East Malaysia. Peninsular Malaysia has boundaries with Thailand, you can see it's bordering Thailand, and East Malaysia has its boundaries with Brunei and Indonesia. Okay, so this highlighted yellowish part you can see is Malaysia with its capital in Kuala Lumpur. Okay, and Putrajaya is the administrative capital. Okay, so Malaysia, truly Asia. Remember the tourism campaign. Okay, so now we'll talk about China. So China has passed 2 important laws today. We'll talk about them one by one. The first one is Beijing passes tough online privacy law. So online privacy law का मतलब क्या है? It basically restricts businesses to store personal data. It restricts businesses to store personal data, and it also instructs businesses to obtain user consent before obtaining this data. ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे you would have heard of cookies, right? ठीक है, जब आप कुछ भी सर्च करते हैं या किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आपसे कुकीज़ के लिए परमिशन मांगता है, राइट? सो दे विल ड्रॉप अ कुकी which will collect your data, they will transfer it to their database, and based on that, so for example when you search something on Amazon, आप उसका देखते हो कि आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो तो राइट साइड पे उसका ऐड आने लग जाता है। अगर आपने जूते सर्च किए हैं तो यू विल गेट एड्स फॉर शूज़, राइट? तो दिस हैपन्स बिकॉज द वेबसाइट इज कलेक्टिंग द डेटा ऑफ वॉट एवर यू आर नेविगेटिंग ऑन द इंटरनेट। तो दिस इज डन यूजिंग अ कुकी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है? गवर्नमेंट ने कहा है कि आप बिना यूज़र की परमिशन के उनका डेटा नहीं ले सकते, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उनमें से भी कुछ डेटा तो हम बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर सकते हैं, कुछ डेटा हम अलाउ कर सकते हैं आपको। तो ये एक स्ट्रिक्ट ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ चाइना ने शेयर किया है। हाँ, मगर चाइना की सिक्योरिटी एजेंसीज को पूरा राइट है, वो जैसा चाहे डेटा होल्ड कर सकती हैं, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने बिजनेस इंस्टीट्यूशंस पे लगाम लगाने के लिए ये लॉ पास किया। एज यू कैन सी, a sweeping privacy law aimed at preventing businesses from collecting sensitive personal data because of an increase in internet scams, and these organizations will be required to first of all reduce data collection, and whatever data they are collecting they have to obtain user consent to collect that data. Okay, this is a more important law. China formally passes 3-child policy, ठीक है। तो
हमारे और चाइना के हालात थोड़े से अलग हैं इन केस में। हमारे यहाँ अभी इफ़ यू रिमेंबर येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड कि हमारी जो एवरेज एज है वो काफ़ी कम है। चाइना में ये केस उल्टा हो गया है, चाइना में एवरेज एज ज़्यादा है और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो गई है। दैट इज़ वाई चाइना ने पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। इनिशियली चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, फिर दे केम अप विद 2 चाइल्ड पॉलिसी इन 2016 की भैया 2 बच्चे होने चाहिए। फिर अब वो कह रहे हैं कि नहीं 3 बच्चे भी हो जाएंगे तो हम अलाउ कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हैपनिंग विद, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मोस्ट चाइनीज आर नॉट ऑप्टिंग फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। दे आर नॉट ऑप्टिंग फॉर चिल्ड्रन और दे आर ऑप्टिंग फॉर 1 किड एट मोस्ट, ठीक है। अब उससे हो क्या रहा है कि चाइना की एवरेज एज बढ़ती जा रही है, ठीक है। इट्स लाइक कि आप इसको ऐसे समझो कि नया स्टॉक आएगा नहीं, पुराना स्टॉक जाएगा नहीं, तो आपके पास क्या रहेगा ज़्यादा, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा पुराना स्टॉक रहेगा। इट्स द सेम थिंग कि आप तो एवरेज एज जो है वो चाइना की बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि देयर आर नॉट इनफ न्यू बेबीज एंड देन the life expectancy is also there. So all those factors are basically promoting or let's say encouraging China to come up with these kind of policies. So China's legislature has amended the country's family planning rules to allow couples to have 3 children. What is the aim? To boost the declining birth rate. Birth rate कम होती जा रही है, ठीक है। birth rate कम होती जा रही है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी अलाउ की गई है। 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, वो फेल हो गई, ठीक है। अब ये 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए हैं जिसमें इन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं। सो इफ़ यू हैव मोर देन 2 किड्स यू विल रिसीव सेवरल बेनिफिट्स, ठीक है। और ऐसे फैक्टर्स पे भी उन्होंने लगाम लगाने की कोशिश की है जो लोगों को प्रिवेंट करते हैं बच्चे करने से। फॉर एग्जाम्पल दे हैव ट्राइड टू रिड्यूस द एजुकेशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है, आपका जो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ी वगैरह है, वो सब उन्होंने रिड्यूस करने की कोशिश की है ताकि लोग पीपल शुड बी एनकरेज टू हैव किड्स, ठीक है। तो अभी चाइना का सेंसस हुआ था वंस इन 10 ईयर्स। जैसे हमारे यहाँ 10 सालों में एक बार सेंसस होता है, वैसे चाइना में भी होता है। तो जो 2020 सेंसस हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि चाइना में पिछले साल 12 मिलियन बेबीज़ हुए थे, विच इज़ द लोवेस्ट सिंस 1961। 1961 के बाद इतना कम नंबर कभी आया ही नहीं, लेकिन पिछले साल ये आया था, ठीक है। सो इट पॉइंटेड टुवर्ड्स द डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, ठीक है। ओवर द लास्ट डिकेड इस सेंसस ने बताया कि बर्थ रेट जो है वो कम होती जा रही है एंड दैट इज़ वाई चाइना नीड टू कम अप विद दिस काइंड ऑफ पॉलिसी। सेंसस से एक और पता चला, चाइना की पॉपुलेशन, करंट पॉपुलेशन है 1.41 बिलियन। इट वॉज इन 2020 चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो थी 1.41 बिलियन। और उसका ब्रेकअप आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें से तकरीबन 19% लोग वो हैं जिनकी एज 60 एंड अबव है, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। आई मीन इफ यू लुक एट ऑलमोस्ट 20% ऑफ 1.4 बिलियन, दैट इज़ अ ह्यूज नंबर एंड ऑल ऑफ दीज आर डिपेंडेंट्स, राइट। फिर 15 to 59 में तकरीबन 64% है एंड बिलो 15 में तकरीबन 18% है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद दिस पॉलिसी बिकॉज दे वांट टू रिड्यूस दिस प्रपोर्शन एंड दे वांट टू इंक्रीज दिस एंड दिस प्रपोर्शन ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा यंग लोग होंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी। तो आर्टिकल के एंड में एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी कि एजिंग क्राइसिस मे बी द बिगेस्ट क्राइसिस विच चाइना मे फेस इन नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चाइना को किससे? उनकी खुद की डेमोग्राफी से, ठीक है। ओके, नाउ विल एनालाइज द एडिटोरियल्स, ठीक है। 2 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, दोनों पे बात करेंगे। द फर्स्ट आर्टिकल इज रिबूट टू रीसेट। इट टॉक्स अबाउट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ये न्यूज़ हमने कल कवर की थी। कल के द हिंदू में फ्रंट पेज पे आर्टिकल था जिसमें हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा था कि इंडिया एंड यूएस are not looking at a free trade agreement in near future because US has not given any such signs, and that is why the country will work on other issues with US, but a free trade agreement is not looking possible in the near future because US is not inclined towards it, ठीक है। तो India's largest trading partner US, so United States is India's largest trading partner and we enjoy a good trade surplus with them. That means we export more to United States of America than we import from them, ठीक है। But US is not agreeing for a bilateral free trade agreement, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? मैंने आपको कल भी बताया था, where the countries which are part of free trade agreement removes barriers
removes trade barriers, whether it's tariff barriers or non-tariff barriers, whether it's quotas, subsidies, tariffs, ये सब रिमूव कर देते हैं ताकि जो ट्रेड है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, दोनों और की पार्टीज़ को ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है. बट यूएस इज़ नॉट इंक्लाइंड टू डू दैट. तो व्हाट द गवर्नमेंट विल डू, द गवर्नमेंट विल नाउ सीन टू वर्क ऑन मार्केट एक्सेस. मार्केट एक्सेस मीन्स more Indian producers should be able to sell goods in US, more US producers should be able to sell goods in India. And then there are other trade issues which the government is trying to resolve: lowering of non-tariff barriers, mutual recognition pacts, adapting common quality standards so that both the parties can do business more effectively with each other. Okay, that is the something which the government will focus at. But it's a loss for India, right? If we are not into a free trade agreement with our biggest trading partner, it's a loss for us. तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? थोड़ा सा हिस्ट्री है इसके पीछे. वी हैव न्यूमरस डिस्प्यूट्स इन WTO विद यूनाइटेड स्टेट्स ओवर वेरियस थिंग्स, ठीक है. इन 2019 जब ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था तो इंडिया को यूएस की जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की लिस्ट से भी निकाल दिया गया था, ठीक है, जिसके तहत यूएस अपने ट्रेड पार्टनर्स को कुछ कंसेशंस देता है. इंडिया को भी वो कंसेशंस मिल रहे थे, बट 2019 में उन्होंने इंडिया को उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया. सो इंडिया वाज नॉट एबल टू रिसीव दोज कंसेशंस एनी मोर, ठीक है. तो इंडिया ने रिटेलिएट करके यूएस के गुड्स पे टैरिफ बढ़ा दिया. ठीक है, आप हमें ट्रेड प्रेफरेंसेस नहीं दे रहे, हम भी आपको क्यों दें. उससे हुआ क्या, जब चाइना यूएस ट्रेड वॉर चल रही थी, साइनो यूएस ट्रेड वॉर चल रही थी, तो उसका बेनिफिट इंडिया को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला. वो बेनिफिट किसे मिला? वियतनाम को, ठीक है. वाई? बिकॉज ऑफ रिटेलिएटरी प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय इंडिया इन रिस्पॉन्स टू एक्सक्लूजन फ्रॉम जीएसपी, ठीक है. तो अभी ऑथर का क्या कहना है? ही सेज कि इंडिया हैज़ टू थिंक अबाउट दिस इशू इन अ होलिस्टिक मैनर. वाई? बिकॉज हम मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं. एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें दूसरे देशों के साथ ट्रेड बढ़ाना है, दूसरी तरफ हम वोकल फॉर लोकल भी कह रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत भी कह रहे हैं. तो एक फॉरेन कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसे तो इंडिया में इन्वेस्ट करने से डर लगेगा. मतलब इस गवर्नमेंट का तो फोकस ये है कि ये तो स्वदेशी ही करना चाहती है. कल को हमारे लिए पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, कल को इंडियन कंज्यूमर हमारे लिए कितना फेवरेबली सोचेगा, ठीक है. तो एक तरफ आप दुनिया से ट्रेड करना चाहते हैं, और यही चीज़ कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी इंडस्ट्रीज़ को समझाई थी कि व्हेन वी से ट्रेड इट्स अ टू वे स्ट्रीट. हम ये नहीं कह सकते कि बाहर के लोग तो कंसेशंस दें आपको और हम उनकी कंपनीज़ को अलाउ ना करें. हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका तो इंडिया के प्रोड्यूसर्स को कंसेशंस दे और हम उनके प्रोड्यूसर्स को अलाउ ही ना करें. इट्स अ टू वे स्ट्रीट, इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीट, एंड यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट इनफ टू विथस्टैंड ग्लोबल कॉम्पिटिशन, ठीक है. तो ये सारी बातें हुई हैं. तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किए हैं. RCEP से हमने विड्रॉ किया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. तो ये पूछा जा सकता है आपसे आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, वोकल फॉर लोकल के बारे में पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, इंडिया यूएस टाइज के बारे में पूछा जा सकता है. लास्ट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, फेथ एंड मैरिज. ये भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. ये अभी रिसेंटली कुछ स्टेट्स ने ऐसे एक्ट पास किए, स्पेशली गुजरात के बारे में इसमें मेंशन्ड है, जिसमें एंटी कन्वर्जन लॉज है. एंटी कन्वर्जन लॉज का मतलब ये है कि अगर आपने इंटरफेथ मैरिज की, फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम वेडिंग, ठीक है, और वेडिंग के बाद किसी भी पार्टनर ने अपना धर्म बदल लिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ मुस्लिम हस्बैंड एंड अ हिंदू वाइफ, और शादी के बाद हिंदू वाइफ कन्वर्ट्स हर रिलीजन टू मुस्लिम, तो गुजरात ने जो एक्ट पास किया उसके हिसाब से तो ये क्राइम है, उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गुजरात हाई कोर्ट ने क्या दिया है? गुजरात हाई कोर्ट ने ये दिया है कि अगर ऐसा किसी फ्रॉड के तहत हुआ है, अगर ऐसा ज़बरदस्ती किया गया है, अगर ऐसा कोई एल्योरमेंट देके किया गया है, तो ये क्राइम है. अगर ये चीज़ अपनी इच्छा से की गई है तो इसे आप क्राइम कैसे कह सकते हो? सिर्फ इंटरफेथ मैरिज किसी ने कर ली, उसको आप क्राइम कैसे कह सकते हो, ठीक है. तो उन्होंने ये बिल्कुल जो अमेंडमेंट किया गया है इस लॉ में, इसे खारिज कर दिया है, ठीक है. सो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंटरफेथ मैरिजेस हो रहा है बाय ट्रीटिंग देम एज अ मीन्स टू कन्वर्ट वन ऑफ द पार्टीज फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर. तो गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किए उसमें वो इंटरफेथ मैरिज को ही एक क्रिमिनल एक्टिविटी घोषित कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है. ओनली कन्वर्जन अगर बाय फोर्स हो, बाय फ्रॉड हो, बाय एल्योरमेंट हो, सिर्फ उसी कन्वर्जन को इलीगल माना जाएगा. अदरवाइज ये जो इनेक्टमेंट कुछ स्टेट्स ने किया है, स्पेशली गुजरात के बारे में यहाँ बात हो रही है, उसे इलीगल माना जाएगा. बिकॉज ये कन्वर्जन फोर्स नहीं है, ये कन्वर्जन वॉलंटरी है, बाय चॉइस है, तो आप इसे इलीगल नहीं मान सकते.
ऑल राइट, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारे कल क्या था, अगस्त 20 क्या था, सद्भावना दिवस के तौर पे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी थी। तो मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि राजीव गांधी जी कब भारत के प्रधानमंत्री बने थे? व्हेन डिड राजीव गांधी बिकेम द फर्स्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? और सही जवाब आप में से कुछ लोगों ने दिया। द करेक्ट आंसर इज 1984. Rajiv Gandhi became the 6th Prime Minister of India, and he was Prime Minister till 1989, from 1984 to 1989. ठीक है, चलिए आज एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे थे यूएस इंडिया ट्रेड के बारे में, WTO का जिक्र हमने किया। तो कैन यू टेल मी वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ओके, आई रिपीट माई क्वेश्चन, where are the headquarters of World Trade Organization? Again, you can respond to me in the comment section of this video, and I'll again come back with tomorrow's edition, the next edition for the Hindu analysis. Till then, keep reading. Goodbye.